السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ چلیے جی، آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا بیان، اور جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت بھی ہے، اور ہم نے یہ پڑھا بھی تھا پچھلی دفعہ بھی کہ ابی سعید الخدری مرفوعاً کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لی حوضم ما بین الکعبۃ و بیت المقدس، کہ میرے لیے ایک حوض ہے جس کی وسعت کعبہ سے لے کے بیت المقدس تک ہے۔ کعبہ آ جاتا ہے ادھر سعودیہ کے علاقے میں، اور بیت المقدس فلسطین تک، ان کے بیچ میں مصر ہے۔ مصر کی سرحد ساتھ لگتی ہے فلسطین کے، جہاں پہ جو ہے نا بیت المقدس ہے۔ ابیض مثل اللبنی، اور اس کا جو ہے نا بیت المقدس، اب سوری جو حوض ہے اس کا جو پانی ہے وہ زیادہ سفید ہے دودھ سے، چمکتا صاف ستھرا اور سفید پانی۔ آنیتہ عدد النجوم، اور اس کے جو برتن ہیں وہ اتنے زیادہ تعداد میں ہیں جتنے جیسے کہ ستارے۔ وَإِنِّي لَأَكْثَرُ الْأَنْبِيَاءِ تَبَعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور میں قیامت کے دن انبیاء میں سب سے زیادہ فالوورز رکھنے والا ہوں گا، یعنی اس پر ستاروں کی طرح آپ غورے ہوں گے، اور میری امت کے لوگوں کو میں پلائی جاؤں گا، پلائی جاؤں گا، پلاؤ جاؤں گا، کیونکہ میری امت سب سے زیادہ ہوگی تعداد کے لحاظ سے۔ چلیے جی، نیکسٹ حدیث پر آئیے۔ عن ثوبان مرفوعاً، اچھا جی، ثوبان جو ہے ان سے مرفوعاً روایت ہے، حوضی ما بین عدن الی عمان، میرا جو حوض ہے وہ عدن سے لے کے عمان تک ہوگا۔ اچھا جی، عدن جو ہے یہ آتا ہے یمن میں، جو بالکل ساتھ لگتا ہے سعودیہ کے، اور عمان جو ہے یہ جناب والا آپ کا بنتا ہے اس کے پاس، جارڈن کے پاس، اردن کے پاس۔ اردن کی سرحد بھی لگتی ہے سعودی عرب کے ساتھ، اور اردن کے بھی ادھر دوسری سرحد لگتی ہے فلسطین کے ساتھ۔ اچھا جی، میرا حوض عدن اور عمان کے درمیان ہوگا، ماؤ اشد بیاضا من الثلج، سفیدی میں برف سے، اور واحلی من العسلی، شہد سے زیادہ میٹھا، واکثر الناس ورودا علیہ، اور بہت سارے لوگ اس پر آئیں گے، فقراء المہاجرین، اور ان میں سے جو زیادہ تر آنے والے لوگ ہوں گے نا وہ مہاجرین کے فقیر لوگ ہیں۔ الشعر رؤوسا، اور جن کے جو ہے نا بال، شعث رؤوسا کا مطلب ہے جن کے بال پراگندہ ہوں گے، الدنس ثیابہا، اور کپڑے میلے ہوں گے۔ ایک تو کے پاس نہانے، صفائی ستھرائی، اس کے گھر بار گندے، لولی ایریاز، اور جو ہے نا پیٹی لیونگ، یہ ہوگا غربت جو ہوگی، تو بال کنگ پراگندہ، کپڑے میلے، الذین لا ينکحون متنعمات، جن سے جو ہے نا متنعمات کہتے ہیں، آسود امیر گھرانوں کی عورت شادی کرنا پسند نہیں کرتی، ولا تفتح لهم ابواب السدد، اور ان کے لیے دروازے نہیں کھولے جاتے بند۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھیں امیر آدمی ہے اور غریب آدمی کے بارے میں یہی کہتے ہیں، ان سے کیا کام ہے، نہ ان سے کسی کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے اور نہ کچھ ہے، تو
क्या उम, उम्मीद तो है कि ठीक हो जाएगी। मैं थोड़ा सिग्नल्स का इश्यू लागिन जिनके साथ हम अबवाबुस्सुदद और बंद दरवाज़े उनके लिए खोले नहीं आते। उनकी क्या कि उनके लिए कोई दरवाज़े खोले कहते हैं आज नहीं गए तो कल, आज तो कल दोबारा आ जाएँगे और दोबारा भी आ जाएँगे तो हाज़त ही लेके आएँगे। हमें क्या ज़रूरत है उनके साथ है ताल्लुकात उसवार करने की, उनसे मिलना-मिलाना तो कुछ है नहीं। अल्लज़ी युअतून वो उनके ऊपर तो मजबूरी है कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करें। वला यख़ऊन अल्लज़ी न लज़िया लहुम उनके हकूक़ पूरे नहीं की जाते। वो जो ज़रूरतमंद हो को खुश करने की कोशिश करता रहता है। और हो गया तो हो गया, नहीं तो ना सही। मुझे किसी ऐसी क्या ज़रूरत है जिसकी जो ना तो मेरे लिए जो है कोई उसको मेरी इतनी ज़रूरत है कि वो मुझे जब भी मिलेगा ये फ़कीरों की जो है ना बात बयान की है। मगर इन फ़कीरों को अल्लाह इतना भी एज़ाज़ दे देगा कि अल्लाह ताला जो है ज़्यादातर उनमें से जो हैं वो अ वो उस पर होंगे अ, हौज़ कौसर पे आके पानी पीने वाले होंगे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के नज़दीक जो है वो जो है इन इन चीज़ों में वो अल्लाह को पसंद होंगी वहाँ और ब्रॉडकास्ट हो रहा है। और क्या है कि ये इस तरह के मुहाजिरीन जिन्हें अल्लाह के नाम के ऊपर घरों से निकाला गया मेरा मुझे तो लगता है कि ये वही वाले मुहाजिरीन हैं जिन्होंने हौज़ कौसर पर जिसको अल्लाह के रसूल वेलकम वहाँ पे आके पानी पीने के सबसे ज़्यादा हकदार और अभी हदीस पढ़ भी लेगा, हदीस में आता भी है जो एक दफ़ा पानी पी लेगा ना वो क़यामत में दिन के लंबा जो है ना वो वो नहीं करेगा। वो क़याम पूरे जी मुझे बिया कह रही हैं कि मेरी आवाज़ बहुत कट रही है, आप दोबारा जॉइन करें। मैं लीव करके दोबारा जॉइन कर रही हूँ। मेरे समय ना कंप्यूटर का थोड़ा-सा मेरा ख़्याल है इसको रीसेट करती हूँ, 1 या 2 मिनट लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आवाज़ नहीं सही आ रही, अटक-अटक के आ रही है। अब बिल्कुल बंद हो गई है।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। बस वो फिर वालेकुम सलाम कंप्यूटर अभी भी रहमतुल्लाह। टाइम ले रहा था, तो मैंने फिर मोबाइल से ही वो कर लिया। चलिए, अल्लाह की तौफीक से करते हैं। अच्छा जी, हम ये बात कर रहे थे फुकरा उल मुहाजिरीन। अच्छा, ये जो हिजरत है ना अल्लाह के रास्ते में कर लेना, देखें ये है फर्ज। जिस जगह पे आप अपने दीन को प्रैक्टिस ना कर सके, उस जगह से आपको हिजरत करनी पड़ती है। लेकिन हिजरत करना बहुत तकलीफ दे बात है। एक इंसान जो है अपने घर से बेघर होता है ना। आपको पता है इस वक्त इंडिया के मुसलमानों में और जो है फिलिस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म ढाए जा रहे हैं ना, उसकी सबसे बदतर शक्ल ये है कि आते हैं और आके उनके घरों को बुलडोजर चला देते हैं, उनके घरों को तबाह कर देते हैं ताकि वो वहां पे रह ना पाए और किसी और जगह पे नकल मकानी कर जाए। बहरहाल अल्लाह माफ करे। तो मुझे तो लग रहा है कि ये जो है बीच में अपना जो वादा है फुकरा उल मुहाजिरीन, इन इनमें अगर तो नाम लें, तो वो जो मक्का से लुट-पुट के आए थे, वो भी अल्लाह के नज़र में पता नहीं कितने प्यारे होंगे और कितनी बड़ी उनकी कुर्बानी थी कि अपने बाप-दादा की जगह को छोड़ के सिर्फ इस जुर्म के ऊपर कि हम मुसलमान हैं, टिकने नहीं दे रहा, और हम अपने दीन को बचाने के लिए जो है ना एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पे आ रहे हैं। अल्लाह ताला हकीकत ये है कि फलस्तीन का जो मामला है हिम्मत के ऊपर बहुत, ये 3705। अच्छा जी, अन अबी हुरैरा था मरफूअन, अबी हुरैरा से मरफूअन रवायत है। आ, ये पता नहीं अब आपका आपको नजर आ रहा है ये जो आपकी आधा पेज जो है कटा हुआ है। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है कि आधा पेज कटा नहीं, हुआ है। मैं देखूं जरा। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, मुझे सही नजर आ गया। अच्छा जी, तरिदु अलैया उम्मती अलहौदा। मैं हौज पर हूंगा और मेरी उम्मत जो है ना वो मेरे पास आएगी। ठीक है। व अना अदूदु अन्नासा अनहु, और मैं कुछ लोगों को इसको इससे दूर कर दूंगा, जैसे बंदा कहता है ना धुतकार दूंगा। कमा यदूदु अर्रजुलु इबल अर्रजुली अन इबली। जैसे होता क्या है, एक आदमी के जो ऊंट खड़े होते हैं ना, तो उनमें कोई दूसरा ऊंट आके मिलने की कोशिश करता है, तो वो दूसरे को ऊंट को बीच में से निकाल देता है कि भाई तू तो पीछे हटना, ये मेरे वाली ऊंट है, ये इधर है, तो तू अपना यहाँ के अंदर ना हमारे अंदर शामिल ना कर अपना ऊंट को, या ऊंट की इधर शामिल ना हो। कालू या नबी अल्लाह अतारिफुना। तो लोग कहेंगे, जब लोगों ने ये बात सुनी, कहने का मतलब ये था कि दूसरी उम्मतों के लोग आएंगे तो मैं उनको पीछे कर दूंगा और अपनी उम्मत के लोगों को तरजीह दूंगा। तो लोगों ने कहा कि अल्लाह के नबी ये बताएं, अतारिफुना, आप हमें पहचानेंगे कैसे? काला, कहा, नाम, हाँ, लकुम सियामन लैसत लिअहदिन गैरिकुम तरिदून अलैया गुर्रन मुहज्जलीना मिन आसारिल वुदू। अच्छा जी, साहबा ने कहा कि आप हमें पहचानेंगे कैसे? तो आपने फरमाया कि तुम्हारे लिए जो है ना ऐसा कोई वो निशान होंगे जो तुम्हारे अलावा किसी और पर नहीं होंगे। तुम मेरे पर आओगे गैर मुहज्जलीना, और तुम्हारे गुर्रन मुहज्जलीना, तुम्हारे जो है ना आजा जो है, जो वुजू के आजा हैं वो चमक रहे होंगे वुजू की वजह से। वला यसुद्दन्ना अन्नी ताइफतुम मिनकुम, और क्या होगा कि तुम में से एक गिरोह को रोक लिया जाएगा मुझसे। फला यसिलूना, को मेरे तक पहुंच नहीं सकेंगे। फाकूलू, तो मैं कहूंगा, या रब, ए मेरे रब, हाउलाई मिन असहाबी, अल्लाह इनको मेरे पास आने दे, ये क्यों नहीं मेरे पास आ रहे, ये मेरे अपने सहाबी हैं, मैं जानता हूं इनको। फयुजीबुनी मलकुन, तो मुझे एक फरिश्ता जवाब देगा। वह हल तदसूल, इन्होंने आपके बाद क्या क्या है, आप दुनिया से अल्लाह का दीन मुकम्मल करके है, यानी बिदआत। तो ये है जनाब बिदत की कहानी। और बिदत इतना बड़ा
गुनाह है या इतनी बड़ी बात है कि उसकी वजह से इंसान जो है मुसलमानों के गिरोह में जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ है ना, उससे जो है वो महरूम कर दिया जाता है। बात ये है कि अल्लाह के और उसके रसूल के बताए हुए मजहब के अंदर अपने अंदाजो अतवार, अपनी पसंद नापसंद को शामिल करके कहना कि ये दीन है, तो ये इसका नाउजुबिल्ला मतलब तो ये है ना कि अल्लाह और उसका रसूल या तो जानते नहीं थे, या अल्लाह और उसका रसूल जो है उनको जो है एक काम करने का तरीका नहीं आया और हम वो जो है वो तरीका कर रहे हैं, और या फिर ये है कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो है इनकम्प्लीट नकम्मी चीज हमें दी थी, जिसको अच्छा करना, उसको बेहतरीन बनाना वो हमारी जिम्मेदारी है, लिहाजा हम अपनी जिम्मेदारी से उसके अंदर नित नई चीजें डाल रहे हैं, और जनाब हम कहते हैं कि ये जो है हमारे दिमाग के मुताबिक ये वाला जो है ना मजहब सही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कामों को ऐसे किया जाए जैसे उनके करने का हक है, यानी जैसे हमें सिखाया गया है। जो अमले साले है उसकी कबूलियत की दो शर्तें हैं। एक तो ये कि वो खालिसतन लिवजहिल्लाह हो, उसके अंदर अल्लाह के अलावा किसी और का अगर रजा शामिल होगी ना तो अल्लाह उससे बरी हो जाता है, वन थिंग। और दूसरी बात ये कि वो उस तरीके के मुताबिक हो जो सुन्नत में बताया गया हुआ। मैं नमाजों को जितना मर्जी वो जो है ना 4 के बजाय 5 पढ़ना चाहूँ, ठीक है, उस तरीके से पढ़ना चाहूँ जो मुझे लगता है कि ज्यादा मेहनत वाला होना चाहिए और उसमें ज्यादा सवाब होना चाहिए, तो छोटी से छोटी सुन्नत जो है ना उसका अजर, इसका ऑनर और इसका स्टेटस इतना बड़ा है कि किसी बड़ी से बड़ी बात जो है ना उसके को उसके मुकाबले में नहीं लाया जा सकता। चलिए जी आगे देखिए, और इन्होंने यहाँ पर जो है ना बिदत के अंदर वो वाली बातें बताई हैं कि नमाज के बाद मुसाफहा या मुआनका का एहतमाम करना, मजलिस मिलाद, उरस, गयारियां, चहलम, मजलिस मरसिया ख्वानी, रस्म कुल, रस्म खत्म वगैरह वगैरह, ईद से पहले खुतबा देना वगैरह वगैरह। चलिए जी, अन उतबा था इबनी गजवाना, उतबा बिन गजवान से रवायत है, अखी बनी माजिन बिन सा, मेरे जो भाई हैं बनु माजिन बिन सासा के भाई जो है ना वो, उन्होंने कहा था ये अन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्न मिन वराइकुम अय्याम सब्र, जब तुम्हारे पास अब जो वक्त आने वाला है ना उसमें तुम्हें सब्र करना पड़ेगा, यानी बड़ा सब्र आजमा वक्त होगा। लिल मुतमस्सिकी फीहिन्ना यौमइदिन बिमा अंतुम अलैहि अजरु खमसीना मिनकुम, जो उसके ऊपर हक को थामने वाला रह गया ना, यानी हक के ऊपर जमा हुआ रहेगा, उसके ऊपर जो है वो उसको तुम्हारे 50 आदमियों के बराबर अजर मिलेगा। कालू या नबी अल्लाह अवा मिनहुम, ए अल्लाह के रसूल ये बताइए कि ऊपर चलिए। अच्छा, यानी अवामिन हम, क्या ऐसा ही होगा, यानी इतना एक बंदे का अमल हमारे 50 अमलों के बराबर हो, 50 बंदों के अमल के बराबर हो जाएगा। काला बल मिनकुम, कहा बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब पता नहीं इससे मुराद वो वाली शोरिशें थी जो कि सैयदना उस्मान के जमाने में देखी और बाद में असहाबुल बैत ने देखी, या फिर इससे मुराद जो है ना आज के जमाने में जो हो रहा है वो है चीजें हैं। और ये जो हमारा ज़माना है ये मुताख़िरीन का ज़माना है, और जिसमें ये जो मेहदी अलैहिस्सलाम के करीब के ज़माने की जो आज़माइशें और जो फ़ितन है ना, हकीकत ये है कि दोबारा बात फ़िलिस्तीनियों की करते हैं कि उनकी जब तकलीफ़ को, उनकी परेशानी को देखा जाता है, तो फिर उनके ईमान को देखा जाता है, तो बस समझ नहीं आती है कि इनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के अलावा कौन जज़ा दे सकता है, और कौन जो है उनके इस इख्तिलाफ की कीमत लगा सकता है जो अल्लाह के रास्ते में बर्दाश्त कर रहे हैं। मैंने एक फ़लस्तीनी बूढ़े की जो है ना बाकायदा उसको बैन करते सुना। पता नहीं कितने घरों की और कितने घरवालों की शहादत उसने देखी होगी, और कलेजा फटता था हकीकत है उसको, उसका जो है ना बैन सुनते हुए कि अल्लाह वो वक़्त कब आएगा जब तेरी मदद आएगी। और उसके एंड पे इसी तरह रोते-रोते कहने लग गया कि हमारे जान, हमारे माल, हमारे बच्चे, हमारी औरतें बैतुल मक़दस की जो है उसके ऊपर कुर्बान हो। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा अच्छा, और आप देखिए कि सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के ग्रुप में मैं आजकल शेयर करती रहती हूँ। उसके अंदर उन्होंने 10 रीज़न्स बताई हैं, और उन्होंने 10 वो बताई हैं जिसके अंदर जिन हालात के अंदर वहाँ के लोग कुरान पढ़-पढ़ के
اللہ کا نام لے لے کے، تسبیحیں کر کے اور تحمید کر کے جو یہ وقت گزار رہے ہیں، تو مجھے تو وہی والی آیات یاد آ جاتی ہیں، احادیث یاد آ جاتی ہیں. ابھی ہم شاید پڑھیں گے بھی وہ احادیث جس میں یہ آتا ہے کہ دجال کے زمانے میں 40 دن جو ہے نا دجال زمین پر رہے گا، اور ان میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. اور کہتے ہیں کہ وہ جو سال کے برابر ہوگا نا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے بتائیں ہم اس میں کھانے پینے کا کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کھانے پینے کا وہی ہوگا، اللہ الحمد للہ، اللہ اکبر کہیں گے تو ان کے پیٹ اسی کے ساتھ بھر جائیں گے. چلیے جی آگے چلیے، اگلی حدیث نکالیے جناب. بالکل جی بالکل، آگے آگے آگے. اچھا جی، روزے قیامت لوگ ننگے ہوں گے، اور سب سے پہلا لباس ابراہیم علیہ السلام کو پہنایا جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے وہ سبز رنگ کے ہوں گے. آدمی انہی کپڑوں میں اٹھایا جائے گا جس میں اس کی موت ہوتی ہے. عن سودہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم، زوج نبی اللہ کے رسول کی جو بیوی ہے سودا، وہ کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبعث الناس حفاتا عراتا غرل، غرلا، یہ بس مجھے نظر نہیں آ رہا، کہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا ننگے پیر، ننگے بدن، اور غیر ختنہ کیے ہوئے. ٹھیک ہے، جی ذرا کلیئر کر دیجیے سر میں تھوڑا سا نا، وہی بات ہے موبائل پر دیکھنا مشکل لگتا ہے. یلجمہم العرق، اور پھر کیا ہوگا کہ ان کا پسینہ سمجھے ان کے گلوں تک پہنچ رہا ہوگا. ویبلغ شحمۃ الاذن، اور ان کا جو پسینہ ہے نا وہ ان کے کانوں کے لوگوں تک پہنچ جائے گا. قالت سودا، سودا کہنے لگی قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وا سودا سوعتا ہو، اے اللہ کے رسول کیسے، ہائے ان کی شرم گاہیں نظر آ رہی ہوں گی. ینظر بعضنا الی بعض، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے، یعنی ہم دیکھیں گے نا ایک دوسرے کی شرم گاہیں، پرائیویٹ پارٹس. قال شغل الناس عن ذلك وتلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگ اتنے مشغول ہوں گے کہ وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دے سکیں گے. مشغول ہونے کا مطلب اپنی فکر کے اندر اتنے غرق ہوں گے کہ کسی نے کیا، کسی کا کون سا جسم کا حصہ نظر آ رہا ہے، کسی کو کون سا جسم کا حصہ نظر آ رہا ہے، یعنی اپنے آپ میں اتنے گم ہوں گے، اپنی پریشانی میں اتنے مبتلا ہوں گے کہ کسی دوسرے کی طرف توجہ دینے کی جو ہے نا حالات نہیں ہوں گے. کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کوئی ننگا ہے یا کسی نے کپڑے پہنے یا کیا ہے. تو اس کے بعد یہ آیت ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی جو ہے وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابی، اور اپنی ماں سے بھاگے گا، اور اپنے باپ سے بھاگے گا. یغنی، اسی حالت میں مبتلا ہوگا تو سارے لوگوں سے بے پرواہ، بے نیاز کر دے گی. اور قرآن مجید میں آتا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، تجھے لگے گا لوگ جو ہیں وہ نشے میں نہیں ہوں گے. وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا کہ بندے حالوں بے حال ہوئے ہوں گے. چلیے جی نیکسٹ والی پہ آئیے، حدیث کے اوپر نیکسٹ والی جناب. اچھا جی، ان عائشہ مرفوعا، عائشہ سے مرفوعا روایت ہے اول من یکسا خلیل اللہ ابراہیم، سب سے پہلے اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ جو ہے انسانوں کو ڈھکنا شروع کر دیں گے، تو نیک بندوں کی باری آ گئی نا، اور ابراہیم خلیل کو جو ہے وہ کپڑے پہنائے جائیں گے. اگلا جناب، عن کعب بن مالک مرفوعا، کعب بن مالک سے مرفوعا روایت ہے. سامنے لائیے حدیث کو، نیکسٹ پیج پہ آ رہی ہے، کیجیے گا جی. یبعث الناس یوم القیامت فاکون انا و امتی علی تل. اچھا جی، قیامت کے دن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، اور میں اور میری امتی جو ہے نا وہ ایک ٹیلے پر ہوں گے، یعنی ایک اونچی جگہ پہ ہوں گے. وَيَكْسُونِي رَبِّي حُلَّةَ خَضْرَاءَ، اور میرا رب مجھے پہنائے گا ایک حلہ، ایک نا کورنگ
जो कि सब्ज रंग की होगी। सुम्मा युअज़नु ली, और फिर मुझे इजाजत दी जाएगी। फ़अक़ूलु माशा अल्लाह, तो मैं कहूंगा माशा अल्लाह। चलिए जी, नेक्स्ट वाली लाइन सामने लाइए। जी जी जी, नेक्स्ट वाली लाइन सामने लाइए जनाब। हाँ जी, ऊपर कीजिए, ऊपर। हाँ, अच्छा जी। अन अकूला, फिर मुझे इजाजत देगी माशा अल्लाह अन अकूला। अच्छा, इसको पूरे को जुमले को पढ़ना है। तो मुझे मैं कहूंगा जो अल्लाह चाहेगा कि मैं कहूँ। फजा का अल मकाम महमूद, और यही मकाम महमूद है। यानी ये जो शफात का चांस मिल जाना जो है ना, और जो मुझे अल्लाह की तरफ से इजाजत होना अपनी उम्मत की सिफारिश करने के लिए, यही मकाम महमूद है। ऐसा मकाम जिसकी तारीफ की गई है। ठीक है। और मकाम महमूद से मुराद वो मकान है जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा रेज होके अल्लाह के सिखाए हुए कलिमात के जरिए उसकी हम्दो सना बयान करेंगे, और फिर वहां से अल्लाह की इबादत करेंगे। क्लास। अच्छा जी, नेक्स्ट वाली हदीस लाइए। अच्छा जी, ये है, नहीं आपने ऊंचा, चलिए आप आ गया, हाँ सामने आ गया। अन अबी सईद अल खुदरी की अन्नहु लम्मा हदरहुल मौत दआ बिथियाबिन जुददिन। अच्छा, अबू सईद खुदरी जो है ना, उनकी जब मौत का वक्त आया ना, तो उन्होंने नए कपड़े मंगवाए और फिर उनको पहना। ठीक है। चलिए, पता नहीं ये इसके सामने वो आ गई है। फिर कहा कि समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कहने लगे कि मैंने सुना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन्नल मय्यिता युबअतु फी थियाबिही अल्लती यमूतु फीहा। मैंने अल्लाह के रसूल से ये सुना था कि मैयत को उन्हीं कपड़ों में उठाया जाएगा जिसमें वो फौत होता है। अब उन्होंने नए कपड़े मंगवा के जेब तन किए। उधर से अबू बकर सिद्दीक जो रदी अल्लाह अन्हु है, जब इनकी मौत का वक्त आया तो इन्होंने क्या किया कि सैयद आयशा फरमाती हैं कि उन्होंने कहा कि मुझे नए कपड़े देने की जरूरत नहीं है, मुझे पुराने कपड़ों में ही कफन दे दो। उसकी वजह ये है कि मैंने तो मट्टी में ही चले जाना है, और इसके बजाय ये जो कपड़े हैं, नए कपड़े, वो किसी के काम आ जाएंगे। तो बहरहाल ये है कि अपनी अपनी अप्रोच है। अबू बकर की अप्रोच अपनी जगह पे बड़ी कीमती है, और असईद बिन खुदरी की ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो बात सुनी, तो उसके साथ उन्होंने सोचा कि चल के मैं नए कपड़े पहनता हूँ, ताकि मैं कयामत के रोज जब उठूं तो इस हालत में मुझे उठाया जाए। चलिए जी, नेक्स्ट वाली हदीस लाइए। जी जी, नेक्स्ट वाली हदीस लाइए जनाब। अगली हदीस, अगली